بشر كيف بشر ربه فيه تجلى وظهر فلك فيه نجوم صدف فيه دوران مانده عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر که بشر می اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام رضا علیہ السلام انا یوم الغدیر فی السماء اشہر منہ فی الارض، روز غدیر آسمانوں میں زمین سے زیادہ مشہور ہے۔ مسئلہ جانشینی پیغمبران ضمانت شریعت ہائے پیغمبران ہے۔ خداوند متعال نے تمام انبیاء کو حکم دیا کہ اپنے بعد اپنے جانشین کا انتخاب کریں۔ انبیاء کا زمانہ بعثت، ان کا زمانہ شریعت مختلف تھا، تقریباً کم تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک خداوند متعال نے جس نبی کا زمانہ شریعت کم ہے یا زمانہ شریعت زیادہ ہے، کوئی تھوڑے سے حصے پر نبوت کے لیے آیا مبعوث ہوا یا زیادہ حصے پر مبعوث ہوا، خداوند متعال نے سب کے لیے حکم دیا اپنے بعد اپنے جانشین کا انتخاب کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا درمیانی فاصلہ 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح کے درمیانی فاصلہ 1200 سال۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم کا درمیانی فاصلہ 2240 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ کا درمیانی فاصلہ 900 سال کا فاصلہ، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ کا فاصلہ 1900 سال کا فاصلہ، حضرت عیسیٰ سے رسول خدا کا فاصلہ 620 سال کا فاصلہ، رسول خدا سے لے کر رسول خدا کی شریعت تا قیام قیامت ہے۔ خداوند متعال نے ان تمام انبیاء کو حکم دیا کہ اپنے بعد اپنے جانشین کا انتخاب کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین حضرت شیث ہیں، جو خداوند متعال کے حکم پر بنے، خداوند متعال کے حکم پر ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین حضرت سام ہیں، جو خداوند متعال کے حکم پر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت شمعون ہیں، جو خداوند متعال کے حکم سے بنے۔ تمام انبیاء جانشین کے مسئلے میں خداوند متعال نے خصوصی تمام انبیاء کو احکام کیے کہ جانشین پہلے انتخاب کرے، کیونکہ جانشین جب تک پیغمبروں کی جانشین رہے ان کا دین سلامت رہا۔ جانشین جیسے ہی دنیا سے جاتے گئے دین میں تحریف شروع ہوئی۔ بعض ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بغیر جانشین کا انتخاب کیے رخصت ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے مل کر ایک شخص کو خلیفہ بنا لیا۔ جانشینی کا مسئلہ پیغمبر کے ساتھ مربوط نہیں ہے کہ پیغمبر چاہے گا تو جانشین کا انتخاب کرے گا، پیغمبر نہیں چاہے گا جانشین کا انتخاب نہیں کرے گا۔ یہ حکم خدا ہوتا ہے، اور پیغمبر کی چاہت اور نہ چاہت بھی حکم خدا ہوتی ہے۔ پیغمبر وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر نے جیسی تبلیغ دین کا آغاز کیا، پہلے دن تبلیغ دین کا آغاز کے ساتھ ہی پاک پیغمبر نے اپنے خلیفہ کا اعلان کر دیا دعوت ذی العشیرہ کے موقع پر۔ خداوند متعال نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو خداوند متعال سے ڈراؤ۔ عزیزان محترم، رسول خدا پر جب یہ وحی نازل ہوئی، رسول خدا گھر تشریف لائے، مورخین لکھتے ہیں استدعى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دعوت کی، حضرت علیہ السلام کو بلایا۔ وَيَأْمُرُهُ بِصَنْعِ طَعَامٍ أَنْ يَعُدَّ لُبَنَا، اور
मौला अली अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि गज़ा और दूध को आमादा करें। वयदउ बनी अब्दुल मुत्तलिब, और बनी अब्दुल मुत्तलिब को दावत करें, लियुकल्लिमहुम बिअम्रिही, ताकि वो उन्हें वो पैगाम पहुंचा सके जो खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये तमाम काम किए, गज़ा वगैरह का इंतज़ाम किया, बनी अब्दुल मुत्तलिब को दावत की। जब वो लोग तशरीफ़ ले आए, पहले दिन रसूल खुदा ने पैगाम नहीं दे सके, दूसरे दिन नहीं दे सके, तीसरे दिन रसूल खुदा ने फरमाया, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब की कौम, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, वल्लाहु मा आलमु शाबन फिल अरब, खुदा की कसम मैं अरब में किसी ऐसे जवान को नहीं जानता, जा कौम ही बेअफ़ज़ल मा जिअतुकुम, जो उससे अच्छी चीज लाई जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। रसूल खुदा अपनी कौम से कह रहे हैं, बेखैर दुनिया वल आखिरा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की खैर लेकर आया हूं, दुनिया आखिरत की खूबी लेकर आया हूं। कद अमरनी अल्लाह तआला, खुदावंद मुताल ने मुझे हुक्म दिया है, अन अदऊकुम इलैहि, के मैं तुम्हें खुदा की तरफ बुलाऊं। खुदावंद मुताल ने मुझे तुम्हें खुदा की तरफ बुलाने का हुक्म दिया है। खुदावंद मुताल ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लोगों को इस अंधेरे से निकाल कर तुम्हें रोशनी की तरफ लेकर जाऊं। फ़अयकुम युआज़िरुनी, बस कौन है जो मेरी मदद करे, अला अन हाज़ल अम्र, इस काम में, अला अन यकूना अखी व खलीफती फीकुम, ताकि तुम्हारे दरमियान वो मेरा खलीफा और मेरा भाई करार पाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम उठे और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया, इन्ना हाज़ा अखी व वसी व खलीफती, ये मेरा भाई, मेरा वसी और मेरा खलीफा है। फस्माउ व अतीउ, इसको फस्माउ लहू, बस जो ये कहे उसको सुनो, व अतीउ, और इसकी इताअत करो। यानी पहली दावत, ये पहली दावत इस्लाम है जो रसूल खुदा दे रहे हैं। पहली दावत इस्लाम के साथ ही रसूल ने अपने वसी का इंतखाब भी कर दिया और अपने खलीफा का इंतखाब भी कर दिया। हमारे पास दोस्त कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये इस दावत ज़िल-ए-अशीरा के मौके पर ईमान लेकर आए। उस वक्त मुसलमान हुए थे। बच्चों में जैसे कि दुनियात में लेकर होता है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम लेकर आए। हम दोबारा एक दफ़ा इस हदीस की तरफ जाते हैं। रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली, लोगों के लिए ग़ज़ा इकट्ठी करो, दूध का इंतज़ाम करो, बनी अब्दुल मुत्तलिब को दावत दो, ताकि उनको मैं वो पैगाम पहुंचाऊं जिसका मुझे हुक्म दिया गया। पैगाम नहीं बताया, रसूल खुदा ने वो पैगाम मौला अली को नहीं बताया, क्योंकि रसूल खुदा जानते थे कि अली जानते हैं वो पैगाम क्या है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के साथ दावत करने वालों में से थे। रसूल खुदा ने वहां पर जाकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दावत इस्लाम नहीं दी, बल्कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम मिलकर सब लोगों को बुलाने वाले थे। खुदावंद मुताल ने जो फरमाया, वन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबियों को बुलाओ और दावत करो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दावत देने वालों में से है, न दावत लेने वालों में से। और एक और मसला जो बयान किया जाता है वो ये है कि अजान में जो शिया कहते हैं कि खलीफे बिला फसल, जो शिया अजान में पढ़ते हैं, इससे हमारी दिल आज़ारी होती है, क्योंकि अली खलीफे बिला फसल नहीं है। रसूल ने अली की खिलाफत का ऐलान उस वक्त किया, दावत ज़िल-ए-अशीरा के मौके पर मैं बात करूंगा, रसूल ने अली की खिलाफत का ऐलान पहली दफा उस वक्त किया जब ये फासला बनने वाले अभी बुतों की पूजा कर रहे थे, और अली ने उस वक्त दीन की नुसरत का ऐलान किया जब अभी फासला बनने वालों को दीन का पता ही नहीं था। अगर किसी के दिल की आज़ारी होती है तो ये उसके दिल का मसला है। हमने अली को खलीफे बिला फाज़िल नहीं कहा, रसूल खुदा अली को खलीफे बिला फाज़िल कह रहे हैं। और रसूल खुदा ने तमाम उम्र ये लफ्ज़ खलीफा या वसी सिवाय इमाम अली के किसी के लिए नहीं बोला, फ़कत इमाम अली के लिए बोलते रहे। और जहां पर भी कोई मौका आता था
कि इमाम अली किसी को भी अपनी जगह पर बिठा कर जाए। वहां पर रसूल खुदा अपनी जगह पर सिर्फ इमाम अली को बिठा कर जाते थे। रसूल की जगह रसूल की जिंदगी में सिर्फ इमाम अली ने ली। सबसे बड़ी मिसाल इसकी शब हिजरत मदीना लैलतुल मबीत है, जब कुफार ने इरादा किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। रसूल खुदा पर वही नाज़िल हुई है, रसूल मदीना की तरफ हिजरत कर जाओ। रसूल खुदा ने अब दो काम करने थे। एक, रात को उन्होंने हमला करना था और रात को इन्होंने जाना था। ऐसे शख्स को, किसी को चारपाई पर सुलाना था, रसूल खुदा की जगह पर सुलाना था, ताकि कुफार उसकी तरफ मतवज्जा रहे और रसूल खुदा जा सके। और दूसरी बात, अमानतों का वापस करना, क्योंकि कुफार अपने पराए साहब रसूल खुदा के पास अमानतें रखवाते थे। रसूल खुदा अमीन मशहूर थे। अब कोई ऐसा होना चाहिए जो रसूल खुदा की तरह अमीन हो, रसूल खुदा की तरह ही अमानतें वापस करें। सबसे पहला मसला जब हल करने की बारी, कौन रसूल खुदा की जगह पर सोए। अब तय ये पाया कि रसूल की जगह वो सोए जो रसूल जैसा दिखता भी हो। ऐसा ना हो कि कुफार कहें कि ये तो वो नहीं है। पता चलना चाहिए ये रसूल ही सोया हुआ है, नफ्स मोहम्मद होना चाहिए। और दूसरा, अमानतें, अमीन रसूल खुदा जैसा होना चाहिए। अमानतदार और अमीन में फर्क होता है। अमानतदार बाज दफा खयानत का मुर्तकिब हो सकता है। मसलन भूल गया, पता नहीं ये अमानत किसने दी थी, दूसरा बंदा लेने के लिए आ गया, उसने उसको दे दी, क्योंकि खुद भूल गया था। ये पता है अमानत है, ये नहीं पता किसकी है, भूल गया। अब है अमानतदार, खयानत नहीं करना चाहता लेकिन खयानत होगी। अमीन वो शख्स होता है जो भूलता ही नहीं और कभी खयानत करता ही नहीं। आसान अल्फाज में बताता हूं, अमीन अमानतदार वो शख्स होता है जो मालिक से पूछता है बताओ तुम्हारी अमानत कौन सी है। और अमीन वो शख्स होता है जो अमानत से पूछता है बताओ तुम्हारा मालिक कौन है। रसूल खुदा ने जब अपनी जगह अमीन बिठाना था, सिर्फ चंद अमानतें देनी थी लोगों को, चंद अमानतें थी, चंद अफराद थे। मक्के में कितने ज्यादा लोग रहते थे, थोड़े से अफराद रहते थे, चंद अमानतें इन लोगों को वापस देनी थी। रसूल खुदा ने इन चंद अमानतों के लिए अपनी जगह पर किसी ऐसे वैसे को नहीं छोड़ा, बल्कि रसूल खुदा ने यहां पर अपने जैसे को छोड़ा। तवज्जो, रसूल खुदा यहां पर अपने जैसे को छोड़ कर गए। जानशीनी का मसला इतना अहम है, रसूल खुदा की जगह लेना इतना अहम है। रसूल खुदा की जगह सिर्फ वही ले सकते हैं जो रसूल खुदा जैसा हो। और ये मसला इतना अहम था कि खुदावंद मुताल ने रसूल खुदा से फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ए रसूल जो पैगाम आपको हमने दिया उसको लोगों तक पहुंचा दे। व इल्लम तफ़अल, अगर आपने ये पैगाम लोगों तक न पहुंचाया, फमा बल्लगता रिसाला, बस आपने कोई रिसालत का काम ही नहीं किया। इससे मुराद ये नहीं है कि खुदावंद मुताल रसूल खुदा की जितनी कुर्बानियां थी उनको ज़ाया कर रहा है, या रसूल खुदा ने जो मुसीबतें बर्दाश्त की खुदा ने उनको ज़ाया कर रहा है, बल्कि खुदावंद मुताल ये कहना चाहते हैं, ए रसूल अगर आप अपने बाद इस शरीयत के लिए सरपरस्त छोड़कर न गए तो ये दीन भी दूसरे अदियान की तरह तहरीफ हो जाएगा। लिहाजा अपने बाद जानशीन बनाएं, अपने बाद अपना इस दीन का सरपरस्त बनाएं, ताकि ये दीन क़यामत तक बाकी रहे, अमानत है क़यामत तक के लोगों के लिए। रसूल खुदा ने इस पैगाम को पहुंचाने के लिए गदीर खुम के मौके पर इज्तिमा किया। अब सवाल ये है कि वहां रसूल खुदा हज करके वहां पर गए थे, तो जो खाना काबे के गिरदो नवा की जगह वो ज्यादा मौजूद थी किसी भी मजमे के लिए, या मदीना में ये बात करते, ये सब बातें बहुत अच्छी थी, ये किसी ऐसी जगह पर रसूल खुदा को ये काम करने चाहिए। रसूल खुदा ने गदीर खुम का इंतखाब क्यों किया? गदीर खुम एक बदबूदार पानी वाली जगह थी, वहां पर कांटेदार झाड़ियां भी थी, यानी वो किसी भी
इज्तिमा के लिए मौजू जगह नहीं थी। रसूल खुदा ने फिर क्यों इंतखाब किया इस जगह का? रसूल खुदा इस पैगाम को लोगों तक ऐसे पहुंचाना चाहते थे ताकि हर कोई ये काम सुने, पैगाम सुने। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बंदा मजलिस में जाता है, महफिल नात में जाता है, तो अमूमन ऐसे होता है कि लोग का ध्यान उस मौलवी की तरफ या मौलाना या खतीब या जाकर या नात खान जो भी है उनकी तरफ अगलब नहीं रहता, ध्यान इधर उधर चले जाते हैं। खतीब की तरफ ध्यान उसी बंदे का रहता है जो ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर वो आराम से ना बैठे हो, जहां पर वो कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि वो हर वक्त इस टेंशन में होगा कि कब जनाब वाली मौलाना साहब मजलिस खत्म करें, ये तकरीर खत्म हो और मैं इस जगह से निजात पाऊं। लिहाजा बाज़ दफा ऐसे होता है कि आधे में वो उठकर चले जाते हैं बाय। रसूल खुदा ने सबको जगा के बैठाना था। और दूसरी बात यह थी कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि बाहर चला जाए। दो मसले, एक तो जागे बैठे और जाके मेरी बात सुने, दूसरा कोई उठकर जाए ना। रसूल खुदा ने बैठने का काम यह किया कि जागने का काम यह किया कि सब लोग जाके बैठे, कि गदीर खून की कांटेदार झाड़ियों और बदबूदार पानी में सबको वहां पर बिठा दिया। अब हर बंदा रसूल खुदा की तरफ मतवज्जा जाके सुन रहा है कब तकलीफ खत्म हो, कब हम घर जाएं। लेकिन अब एहतमाल था कि चले जाएंगे। रसूल खुदा ने इस जाने के मसले का हल ये किया कि जिनके जाने का खौफ था उनसे रसूल खुदा ने पालान ले लिए, उनका मिंबर बनाया और खुद उस पर बैठ गए। अब न किसी के सोने का खौफ न किसी के जाने का खौफ। जब तमाम मवाने मफकूद हो गए, लोगों के जाने के और सोने के, और तमाम मौके मौजूद हो गए पैगाम पहुंचाने के, अब पैगाम जो भी होगा सब गौर से सुनेंगे। अब रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, बुलंद किया और फरमाया, मन कुन तो मौला फहाद अली मौला, ए लोगो जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन अफसयअलमून अल्लज़ीना यमुनक़लबीन यनक़लिबून।